Hello, dear children. I welcome you all on your online class. Okay, dear children, today in this class we are going to discuss lesson number 4 from your English literature book, Fight Manju Fight by Sigrun Srivastava. And this chapter is very enthusiastic. In this story, you will definitely find a moral, a lesson that will boost up your confidence, that will definitely encourage you in your life whenever you face any hurdle, any difficulty in your life. At that time, this lesson, this story will definitely help you. Okay, before we read, some pre reading task is given. Imagine a situation wherein you are suffering from high fever and you are to appear for a very important examination the next day. What will you do? What will you and your friends do? Discuss in groups of five. Okay, the condition has been given that suppose you are going to appear in a very important examination the next day, and somehow you have been suffering from fever, right? आपको बुखार है, आपका पेपर है अगले दिन, और वो पेपर देना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ामिनेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप क्या करोगे या आपके फ्रेंड्स क्या करेंगे उस टाइम? डेफिनेट डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं. समवन विल से, आपके पेरेंट्स आपको कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, यू कैन ड्रॉप द योर एग्जामिनेशन, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Some of your friends can say, yes, of course, you should not go, you should take rest. Some of your friends may say, they may advise you that you should take your exam, or you should take the medical service first. After that, you can take your exam. And second one is, do hurdles dishearten you or give you greater strength? क्या जो हमारे जो मुसीबतें होती हैं, हर्डल्स मतलब प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, क्या वो हम लोगों को डिस्करेज करती हैं या फिर हम लोगों को अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ देती हैं, हमारी लाइफ में और मजबूत करती हैं हमें, राइट? इसके भी अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं सभी के, बट अकॉर्डिंग टू मी, यस, हर्डल्स, एवरीबडी faces hurdles, problems, difficulties in his or her life, but they give a chance to us to face them boldly and just pass them, just overcome them, and come out with flying colors. They just give us an opportunity to struggle. So this is the story is related to a girl who struggle in her life. What is her struggle? Let's read it out. Now read the story of a young girl, Manju, who does not let adversities hamper her ambitious spirit. ये कहानी है एक लड़की की, मंजू उसका नाम है, और who does not let adversities means misfortunes, bad luck, उसकी बुरी, जो उसका बैड लक है या उसका दुर्भाग्य जो है, उसकी वजह से उसने अपनी जो एम्बिशियस स्पिरिट मीन्स, एम्बिशियस मीन डिटरमिन, पक्के इरादों वाली, जो अपनी उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो शक्ति है, आत्मा है, कंसाइंस है, उसको उसने रुकने नहीं दिया, ब्लॉक नहीं करने दिया. मतलब चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें आ गई, वो रुकी नहीं. वो लड़की मंजू, जिसका नाम मंजुला पारेलकर, knew she was no Hussain. You can see, first I would like to tell you about this Hussain, Hussain. Hussain क्या है यहाँ पे? If you can see this portrait here, could you find out, or could you just tell me what is it? Like who is it? This portrait. If you do not know, let me tell you. This is a great artist of India, M.F. Hussain. M.F. Hussain is the name of the person. यहाँ पे जो हुसैन मेंशन किया हुआ है,
ही इज़ हुसैन, मिस्टर हुसैन। उनकी आर्ट इट इज़ वर्ल्ड फेमस। तो ये मंजुला पारेलकर न्यू, वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी दैट शी वॉज नो हुसैन, कि वो हुसैन तो नहीं है, कि मैं हुसैन तो नहीं हूँ, मैं अच्छी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ। शी कुड नेवर बी, और ना वो हो सकती थी। नॉट विद दोज हैंड्स ऑफ हर्स, दोज क्लॉ लाइक malformed फिंगर्स। उसको पता था ना, मैं अच्छी पेंटर नहीं हूँ, हुसैन साहब की तरह मैं अच्छी पेंटर नहीं हूँ, और मैं बन भी नहीं सकती हूँ। नॉट विद दोज हैंड्स, उन हाथों से कम उन हाथों, जो उसके हाथ थे, उन हाथों से तो नहीं बन सकती थी वो अच्छी पेंटर। क्यों? दोज क्लॉ लाइक malformed फिंगर्स, वो क्लॉ लाइक, पंजों की तरह, जो क्लॉज होते हैं ना, एनिमल्स के क्लॉज होते हैं, उनकी तरह उसकी फिंगर्स जो थी malformed, मीन्स एबनॉर्मल। एक तो नॉर्मल हमारी फिंगर्स होती हैं, राइट, एबनॉर्मल थी उसकी फिंगर्स। कैसी थी ये देखिए, इस तरह से पंजों की तरह उसकी जो फिंगर्स थी, इस तरह से, मतलब वो एक एबनॉर्मल फिंगर्स के साथ थी वो जो लड़की थी मंजुला। देन वाई हर हैंड्स टू, वो अपने आप से क्वेश्चन पूछती है, वाई हर हैंड्स टू, मेरे हाथों को भी ऐसा होना था क्या, मेरे हाथों के साथ भी ऐसा होना था। Wasn't it enough that her feet were deformed, ending it in two massive moon-shaped toes pointing at each other? उसको क्या प्रॉब्लम थी? उसके पैर भी वैसे ही थे। Wasn't it enough? क्या ये काफ़ी नहीं था कि उसके पैर पहले से ही deformed हैं, crippled हैं, वो abnormal हैं, and ending in two massive moon-shaped toes, और उसके जो पैर थे वो इस तरह से मुड़े हुए। ये देखिए, इस तरह से उसके पैर जो थे वो मुड़े हुए, टोज जो थी वो मुड़ी हुई, और इस तरह से वो एक दूसरे की ओर, राइट, उसके पैर भी ऐसे ही थे। टू मैसिव मून शेप्ड टोज पॉइंटिंग एट ईच अदर, दो बड़ी बड़ी उसकी मून शेप्ड, मून की शेप की तरह उसकी टोज जो एक दूसरे की ओर पॉइंट करते हुई, एक दूसरे की ओर मुड़ी हुई। द हार्ड नेल्स टचिंग, ग्रैटिंग अगेंस्ट ईच अदर वेन एवर शी वोर रॉन्ग शूज़। और क्या होता था, जो उसके नेल्स जो थे वो जो टच होते थे, एक दूसरे से टच होते थे, क्योंकि वो एक दूसरे की ओर मुड़ी हुई थी तो नेल्स टच होते थे। ग्रेटिंग अगेंस्ट ईच अदर वेन एवर शी वोर रॉन्ग शूज़, जब भी वो गलत शूज़ डालती थी, मतलब ऐसे शूज़ जो उसके पैरों पे फिट नहीं होते थे, ऐसे शूज़ डालती थी, तो वो एक दूसरे से ग्रेटिंग मीन्स इरिटेट होते थे, एक दूसरे से टकराते थे, इरिटेट होते थे। She wore wrong shoes most of the time, for there weren't any shoes in the market soft enough for her clumsy feet. वो बहुत बार गलत जूते डालती थी। क्यों? क्योंकि देर वरंट एनी शूज़, क्योंकि मार्केट में उसके जो फीट जो हैं उसके लिए शूज़ अवेलेबल ही नहीं होते थे। इन द मार्केट सॉफ्ट एनफ फॉर हर क्लम्सी फिट, उसके जो क्लम्सी मीन्स ऑकवर्ड, उसके जो बहुत ही बेकार से या बेतरतीबे जो एबनॉर्मल जो उसके पैर थे, उनके लिए मार्केट में शूज़ अवेलेबल ही नहीं थे, तो इसलिए कई बार उसको गलत शूज़ डालने पड़ते थे। हर फीट हर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम बट शी डिडंट माइंड दैम सो मच, उसके पैर उसको बहुत पेन करते थे। हर्ट, HURT, पेन, बहुत पेन होता था उसको, बट शी डिडंट माइंड दैम सो मच, लेकिन अब वो उतना बुरा नहीं मानती थी। शी कुड हाइड दैम इन दोज अगली मेड टू ऑर्डर शूज़, कम से कम वो उनको छुपा तो सकती थी उन अपने शूज़ के अंदर। कैसे शूज़? मेड टू ऑर्डर मतलब कस्टम मेड, राइट। जब आप शू मेकर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि नहीं आप प्लीज़ मेरे शूज़ के आप अकॉर्डिंग, मेरे फीट के अकॉर्डिंग आप बनाइए, दैट इज़ कस्टम मेड। एक तो रेडीमेड होते हैं, राइट, एक कस्टम मेड जब आप उनको बनवाते हैं। तो अब उसके लाइक जो शूज़ थे वो मिलते नहीं थे, तो उसके पापा उसके पैरों के लिए उसको रेडीमेड शूज़ नहीं बल्कि कस्टम मेड शूज़ बनवाते, मतलब बनवाया करते थे उसके लिए शूज़।
बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स। कुड शी, कम से कम वो अपने पैरों को अपने जूतों के अंदर छुपा तो सकती थी, लेकिन क्या क्या वो अपने हाथों को छुपा सकती थी? कुड शी, क्या ऐसा हो सकता था? मंजुला पारेलकर न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन। वो जानती थी अच्छी तरह से कि मैं हुसैन की तरह, मिस्टर एम एफ हुसैन की तरह पेंट नहीं कर सकती हूँ, पेंटिंग नहीं बना सकती हूँ। बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल। लेकिन कम से कम मैं पेंटिंग तो सीख सकती हूँ ना, अच्छी पेंटिंग बनाना तो सीख ही सकती हूँ। हैंडलिंग ब्रशेज वॉज नो प्रॉब्लम, दे डिडेंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पेंसिल। ब्रशेस को हैंडल करना, उनको पकड़ना, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो ठीक वैसे ही था जैसे जैसे पेंसिल्स को पकड़ना। ब्रशेस को पकड़ना बड़ी बात नहीं थी। जैसे वो पेंसिल को पकड़ती थी वैसे ही ब्रशेस को पकड़ती थी। हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल शी वुड नीड। सबसे बड़ी उसकी जो प्रॉब्लम थी वो थी वो जो मटेरियल, जिस मटेरियल का वो यूज़ करना चाहती थी पेंटिंग बनाने के लिए, वो मटेरियल की कॉस्ट वो काफ़ी महंगा था। जिस मटेरियल की उसको ज़रूरत होती थी वो मटेरियल बहुत महंगा था। वो मेन प्रॉब्लम थी। मम्मी, शी आस्क्ड वन इवनिंग while helping her mother in the kitchen after dinner, do you think I could, she paused nervously, I could have some extra money tomorrow? तो उसने अपनी मम्मा के साथ में डिनर के बाद किचन में वो हेल्प कर रही थी, तो उसने पूछा, मम्मी, डू यू थिंक आई कुड, क्या आपको लगता है कि कल, वो थोड़ी देर के लिए रुक गई, नर्वस हो गई थोड़ी सी वो, आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, क्या आपको लगता है कि कल मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे? व्हाट डू यू नीड इट फॉर? आस्क्ड हर मदर जेंटली रिंसिंग द डिशेस। तो उसकी मम्मी ने पूछा, बड़े उसको आंसर किया सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्टली प्यार से बोला, व्हाट डू यू नीड इट फॉर? आपको ये किस लिए चाहिए बेटे? रिंसिंग द डिशेस, वो रिंसिंग मीन्स वॉश ऑफ, धोते हुए, प्लेट्स को धोते हुए उन्होंने पूछा, ये किस लिए चाहिए बेटा आपको पैसे? फॉर आइसक्रीम, आंसर्ड हर ब्रदर फ्रॉम द डोर विद एन इम्पिश ग्रिन। तो उसका भाई, मंजुला का भाई वहाँ पे डोर के पास खड़ा हुआ था। उसने बोला, उसकी मम्मी ने पूछा तो मंजुला से था, लेकिन वो पीछे से बोल पड़ा, डोर के पास खड़ा था, वो स्माइल करते हुए बोला, फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए चाहिए मम्मी। थम्पिंग द डोर विद द palm of his hand, he chanted, "We want ice cream, we want ice cream." तो वो अपने हाथों से, अपनी पाम से, हथेलियों से दरवाजे को, डोर के साथ तो खड़ा ही था, तो डोर को ज़ोर से थम्प कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है, बोल रहा है, "We want ice cream, we want ice cream." Ignoring him, her mother repeated, "Why do you need the money, Manjula?" उसको इग्नोर करते हुए, उसकी मम्मी ने इग्नोर करते हुए मंजुला से पूछा, बेटे आप बताइए आपको पैसे क्यों चाहिए? फॉर कलर्स एंड पेंट्स, आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग। मंजुला ने बोला, मुझे पैसे चाहिए कलर्स और पेंट्स के लिए, मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ मम्मी। पेंटिंग? आस्क्ड हर मदर अनबिलीविंगली। उसकी मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा था और उसने पूछा, पेंटिंग के लिए? But you, she added quickly, of course it's a nice hobby. उसकी मम्मी ने बोला, लेकिन तुम, फिर एकदम से बोला, हाँ हाँ बिल्कुल बेटे, ये अच्छी आदत है, अच्छी हॉबी है, ये बहुत अच्छी हॉबी है। इट विल बी मोर दैन ए हॉबी, रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली। मंजुला ने बड़े धीरे से बोला, ये हॉबी से थोड़ा ज़्यादा है मम्मी, मेरे लिए हॉबी से थोड़ा ज़्यादा है ये। मिसिस पारेलकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली। तो मिसिस पारेलकर जो हैं वो अपनी बेटी की ओर, मंजुला की ओर देख रही थी सर्चिंगली, मतलब शी वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हर माइंड। मंजुला क्या सोच रही है वो ऐसा जानना चाहती थी उसकी माँ। शी गेज लॉन्ग इन टू दोज सीरियस मेलैंक्लिक आइज। गेज्ड मतलब टू लुक एट। वो उसकी मम्मी बड़ी देर तक उसकी मेलैंक्लिक मीन्स सैड, उसकी दुखी उन आँखों में देखती रही।
Closing the tap, she walked over to the kitchen cupboard and pulled out an ornate metal box from the topmost shelf. और टैप को ऑफ किया क्योंकि वो क्या कर रही थी, डिशेस को रिंस कर रही थी, वॉश ऑफ कर रही थी, डिशेस को धो रही थी। धोने के बाद टैप ऑफ किया, किचन के कबर्ड की ओर गई और वहाँ से एक ऑर्नेट मीन्स डेकोरेटेड, बहुत ही अच्छा सुंदर सा एक मेटल टी बॉक्स निकाला उन्होंने, शेल्फ के ऊपर रखा हुआ था, उसको निकाला और क्या बोला, माई पिगी बैंक, शी स्माइल्ड। उसकी मम्मी ने बोला, ये मेरा पिगी बैंक है, डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस, ये बताना मत किसी को भी, यहाँ पे मैंने छुपाया, इसको बताना मत। देन शी प्रेस्ड अ फ्यू नोट्स इनटू मंजुलाज हैंड, तब उन्होंने क्या किया, मंजुला के हाथों में कुछ नोट्स दिए, पैसे दिए। गो अहेड एंड बाय वट एवर यू नीड डियर, हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग। उसकी मम्मी ने पैसे दिए और बोला, ये लो बेटा, और जो भी तुम्हें चाहिए खरीद लो, इंजॉय कर, और मुझे पेंटिंग ज़रूर दिखाना। मंजुला पारेलकर शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर द वेरी नेक्स्ट डे, और मंजुला ने पेंटिंग बनाई और अगले ही दिन पहली पेंटिंग अपनी मम्मी को दिखाई। मंजुला क्राइड हर मदर, ड्रॉपिंग हर नीडल वर्क इन सरप्राइज। वाई, दैट इज़ ब्यूटिफुल, आई डिडंट नो यू आर दिस गुड। तो उसकी मम्मी जोर से चिल्लाई, मंजुला। और उसकी मम्मी यहाँ पे देखिए, यू कैन सी, यहाँ पे ये नीडल वर्क कर रही थी कुछ, राइट। तो उन्होंने वो अपना नीडल वर्क, स्टिचिंग का जो भी था वो काम छोड़ा और बोला, मंजुला, सरप्राइज में थी वो, वाई, ये क्यों, कैसे, इतनी सुंदर पेंटिंग, आई डिडंट नो यू वर दिस गुड, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी हो पेंटिंग बनाने में। डू यू थिंक सो, डू यू रियली थिंक सो, आस्क्ड मंजुला डाउटफुली। मंजुला ने थोड़े से डाउट में कहा, मम्मी क्या आपको लगता है सच में ऐसा ही है, क्या ये वाकई में अच्छी है? ऑफ कोर्स डियर, शी हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ, इट लुक्स परफेक्ट। उसकी मम्मी ने उस पेंटिंग को अपने हाथों से थोड़ा सा दूर रखा, उसको वाटर कलर पेंटिंग को थोड़ा सा दूर रखा और बोला, इट लुक्स परफेक्ट, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। ओ माँ, cried Manjula pleased, this is just the beginning, I'll pick up fast। तो मंजुला बहुत खुश होकर के चिल्लाई, क्या बोला, ओ माँ, अरे माँ, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये तो शुरुआत है मम्मी, I'll pick up fast, मैं और भी इससे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी मम्मा।